Again, good afternoon to all of you. So today's topic is partitioning of feed energy. Energy need not to define energy को आप कैसे define करते हैं और in nutritional point of view two things are very important. First is protein, another is energy. Others are also important, but protein and energy are the costliest item in feed industry. Therefore, you need to understand the meaning of energy and particularly of feed energy, because understanding of feed energy will help you that how feed energy is converted to energy or usable energy for animal being. कि जब तक आप ये ना समझें कि जो फीड एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं वो एनिमल में जाके कैसे ट्रांसफर होता है, कितना ट्रांसफर होता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक आप राशन फॉर्मुलेट नहीं कर सकते. एज फॉर एग्जांपल, suppose you are feeding a feed having a good quantity of energy, but availability of that energy is nil or less. This means utilization of that energy is very less and your whole practice is zero. So therefore it is very much needed to understand the meaning of feed energy and how feed energy, that is energy contained in feed, is how efficiently converted in animal body or usable for animal body. So if you talk about energy in any substance, or you can say either a feed ingredient or inedible substance, that is in the form of gross energy, and that gross energy is also called as heat of combustion. Heat of combustion means if you burn completely a substance, the heat generated by that particular substance is known as gross energy or heat of combustion. तो इस चार्ट को अच्छे से आप एक बार देख लेंगे और मैं बारी बारी से फिर आऊंगा. ये दिस चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Just you need to learn, or you need to just get what heard that gross energy, if you deduct fecal energy from gross energy, then it is digestible energy. If you deduct urinary energy and gaseous energy from digestible energy, then it is metabolizable energy. If you deduct heat of increment from metabolizable energy, then it is net energy, and net energy is the energy which is being used by animal at cellular level or at metabolic level and for particular physiological stage of life. Like for maintenance, then it will call as maintenance energy. If it is for production, then it is for production energy. Again, production energy can be categorized as, if it is for growth, then it is growth net energy for growth. If it is for lactation, then it will be for net energy for lactation. So in series you have to remember gross energy, digestible energy, metabolizable energy, net energy. Many a times it has been asked that metabolizable energy is equal to DE माइनस एक ब्लैंक लिखा रहेगा, तो यू नीड टू फिल. कई बार पूछा जाएगा नेट एनर्जी इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रॉस एनर्जी. तो ये सारे जो डिडक्शंस हैं उसको याद करने जरूरी है. जितने डिडक्शंस हैं उनको याद करिए और उसको एक एक करके समझिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एक एक करके आपको समझाऊं कि क्या है. वही है ग्रॉस एनर्जी. You must have studied energy is stored in chemical component of feed as chemical energy, and you must have studied or you remember thermodynamics and law of energy. Energy can't be created, not be destroyed. और जो कन्वर्सन ऑफ एनर्जी है, यहाँ भी वही चीज होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है. तो स्टोर्ड एनर्जी इन केस ऑफ फीड और एनी पार्टिकल और इनएडिबल सब्सटेंस इवन, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनर्जी. यानी कि उसके जो केमिकल एनर्जी होते हैं उसको ही हम ग्रॉस एनर्जी कहते हैं. ग्रॉस एनर्जी कैसे उसको हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर कंप्लीट बर्निंग कर देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम ग्रॉस एनर्जी कहते हैं. हो सकता है कि ये फीड का हो, किसी भी सब्सटेंस का हो. तो इतना तो क्लियर है, ग्रॉस एनर्जी इज एन एट्रीब्यूट्स ऑफ फीड, यानी कि ये केवल फीड का एनर्जी है, इसमें एनिमल का कुछ भी लेना देना नहीं है. इसके पीछे आगे और भी बताएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि सपोज करिए आप अगर
लकड़ी को भी जला देते हैं तो वहां से भी एनर्जी निकलेगा, उसकी भी ग्रॉस एनर्जी होगी। मेज को आप जलाते हैं तो वहां से भी ग्रॉस एनर्जी निकलेगी। तो ग्रॉस एनर्जी डजंट मीन दैट इट दिस एनर्जी इज used for animal or for human being. It is only characteristics of a particular feed, food or any substance. इसका प्रिंसिपल क्या है, किसी भी चीज को अगर आप बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद कंप्लीट बर्निंग, बर्निंग में भी एक वर्ड यूज करना चाहिए, कंप्लीट बर्निंग, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ कार्बन बच जाए, कुछ नाइट्रोजन बच जाए। उसके बाद जो रिएक्शन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर गैसेस, और साइड बाय साइड जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उस एनर्जी को अगर हम क्वांटिफाई कर लें, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस एनर्जी। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि कहते हैं बम कैलोरीमीटर। दैट बम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू असेस द एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड और अदर ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड। एक सवाल कई बार जेआरएफ लेवल पे पूछा जाता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए कैलिब्रेशन होगा ना, कि ये तो एक रेफरेंस वैल्यू होता है, उसके कंपैरिजन में वो किसी भी फीड का एनर्जी वैल्यू बताएगा। तो जो कैलिब्रेशन करते हैं यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं बम कैलोरीमीटर को, दैट इज बेंजोइक एसिड। याद रखना इसको, बेंजोइक एसिड इज द रेफरेंस मटेरियल, और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो किसी एक रेफरेंस मटेरियल का यूज करते हैं उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। एज इन केस ऑफ प्रैक्टिकल यू मस्ट हैव स्टडी जो प्राइमरी सॉल्यूशन और सेकेंडरी सॉल्यूशन जहां पे ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते थे। ओके, सो ग्रॉस एनर्जी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाइटरी एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा अगर हम फीड के बारे में बात करें तो मैं आइदर में बी इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, बिकॉज मिनरल्स एंड विटामिन और पर्टिकुलरली ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक चीज कई बार पूछा जाता है कि देयर इज डिफरेंस इन ग्रॉस एनर्जी। अगर हम पूछें आपको, जैसे बताएं कि ग्रॉस एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन इज 5.25 5.45 एंड फैट इज 9 किलो कैलोरी। सबको याद होगा। तो एक सवाल पूछा जाता है कई बार, व्हाई देयर इज डिफरेंस इन ग्रॉस एनर्जी लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तीनों के always fat has higher energy value as compared to carbohydrate and protein। तो उसके पीछे एक रीजन है कि बर्निंग का जो एक कंप्लीट जो बर्निंग होती है उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए सबस्ट्रेट चाहिए, कार्बन चाहिए। तो वो बर्निंग के लिए जो ऑक्सीजन का रेशियो होता है उसी के कारण किसी का भी एनर्जी वैल्यू हाई और लो होता है। तो ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा आपको। इन केस ऑफ फैट द कार्बन प्लस हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज हाईएस्ट, यानी कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा होगा वहां पे उसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर कार्बन टू ऑक्सीजन का रेशियो कम होगा वहां पे एनर्जी वैल्यू इसकी कम होगी। दिस इज द रीजन व्हाई ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट इज हायर एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बेनिफिट्स क्या है ग्रॉस एनर्जी के? ग्रॉस एनर्जी सिंपल वेरी, इसमें किसी भी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पे आसानी से उसको आप एसेस करते हैं, बर्न करिए, बर्न करने के बाद उसकी एनर्जी वैल्यू मालूम चल जाती है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एस्टिमेटिंग वेरियस फीड एनर्जी वैल्यू। कभी भी हम जब एनर्जी वैल्यू का शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग यहीं से होता है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये एनिमल के बारे में कुछ नहीं बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जी वैल्यू वेरीज लिट बिटवीन फीड, दिस डजंट स्पीक अबाउट द एनिमल। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बताऊं कि अगर वुड या कोई भी कोयला भी आप जला देते हो तो उसकी एनर्जी वैल्यू होगी, लेकिन वो एनर्जी ह्यूमन और एनिमल के लिए यूजफुल नहीं होगी। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रॉस एनर्जी, दैट इट डजंट टेल अबाउट एनर्जी कंट्रीब्यूशन for animal or energy utilization for sometimes GA value है lit between feet, जैसे ल्यूसर्न है और सॉडस्ट। सॉडस्ट मीन्स लकड़ी का जो बुरादा होता है वो यूजफुल नहीं है, वो एनिमल के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, लेकिन दोनों का एनर्जी वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होता है। जबकि मुझे पता है कि ल्यूसर्न है इज यूजफुल फॉर एनिमल बीइंग बट सॉडस्ट इज नॉट यूजफुल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस और मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ये पहले ही बता ही दिया हमने, बाद में पढ़ लेना कि इसके कितना प्रिंसिपल कैसे हैं, बम कैलोरीमीटर कैसे। बम BOMB बम जो है वो एक कैलोरीमीटर का पार्ट होता है जहाँ पे कि फायरिंग करते हैं। कभी डिपार्टमेंट में बता दूंगा, छोटा सा है जिसमें कि ऑक्सीजन पहले फिल करते हैं, ऑक्सीजन फिल करने के बाद उसमें इग्निशन देते हैं, और इग्निशन देने के बाद उसमें बर्निंग होती है। कंप्लीट ऑक्सीडाइज सिस्टम होता है, इसलिए उसको बॉम्ब कहते हैं।
Next one is digestible energy. Digestible energy means if you deduct fecal energy, this mean कि जो भी फीड आपने एनिमल को खिलाया तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा यूज हो जाए, तो उसके बाद जो फीसेस में कुछ एनर्जी चली आती है, या यूं कह लो कि कुछ प्रोटीन के पार्ट आ गए, कुछ कार्बोहाइड्रेट के आ गए, कुछ फैट के आ गए, तो उसको जब बर्न करेंगे तो वहां भी एनर्जी होगा। तो ये जो ग्रॉस एनर्जी से फीकल एनर्जी को हम डिवाइड माइनस कर देते हैं, देन इट इज डाइजेस्टिबल एनर्जी। एक वर्ड आता है अपरेंट डाइजेस्टिबल एनर्जी और ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी, इसको ध्यान से सुनना, कई बार कंफ्यूज करते हैं, दोनों मतलब समझ में नहीं आता है, अपरेंट का मतलब क्या हुआ और ट्रू का मतलब क्या हुआ है। बल्कि सिंपली समझो आपकी डाइजेस्टिबल एनर्जी इज ग्रॉस एनर्जी माइनस फीकल एनर्जी। अपरेंट का मतलब क्या हुआ कि इस फीकल एनर्जी में जो कुछ भी एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस आया है वो कहीं और से भी आ सकता है। एज फॉर एग्जांपल कि आपने 500 ग्राम फीड दिया, तो हो सकता है कि वो 300 डाइजेस्ट हुआ और 200 डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जो 200 डाइजेस्ट हुआ वो फीकल एनर्जी में काउंट हुआ। उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने फीड नहीं खिलाया, लेकिन वो पहले फीड खिलाया था, उसकी जो बची हुई है या उसके मेटाबोलाइट्स है वो भी फीसेस में चला आया हो। या सिंपली ये समझने की कोशिश करो कि जो एंजाइम है, एंजाइम जब यूज हो गया तब भी वो भी एक्सक्रीट होता है, तो एंजाइम चूंकि प्रोटीन है तो वो माइनर क्वांटिटी ही सही कुछ ना कुछ तो एनर्जी यील्ड करेगा। तो अगर केवल फीकल एनर्जी में भी केवल फीड एनर्जी वाला माइनस हम कर लेते हैं, देन इट इज ट्रू डाइजेस्टिबल एनर्जी। इस फीकल एनर्जी में क्या होगा कि फीकल एनर्जी ऑफ फीड ओरिजिन एज वेल एज फीकल एनर्जी ऑफ मेटाबोलाइट्स या बॉडी का जिसे स्लफ, जीआरटी के जो स्लफिंग्स होते हैं, म्यूकोसा आते हैं, वो भी इस फीकल एनर्जी में शामिल होता है। तो ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अपरेंट डाइजेस्टिबल एनर्जी। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि ट्रू और अपरेंट में क्या मतलब हुआ। ट्रू का मतलब कि केवल फीड का जहां कंट्रीब्यूशन होगा वहां ट्रू होगा, और अपरेंट का मतलब हुआ कि फीड के साथ साथ बॉडी के और पार्ट से भी जो चीजें आती हैं उसमें वो काउंट हुआ होगा। कई बार टीडीएन के साथ इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये एक फार्मूला पूछा जाता है, टीडीएन इज इक्वल टू digestible energy is equal to TDN multiplied 4.4. Next one is metabolizable energy. Metabolizable energy means, याद हो गया होगा आपको पहले भी क्या होगा, ग्रॉस एनर्जी फॉलोड बाय डाइजेस्टिबल एनर्जी फॉलोड बाय मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। तो ये वाला जो पार्ट है जीई माइनस एफ ई, स्लाइड सबको दिख रहा है, स्लाइड सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, यस सर। ये जहां कर्सर में मूव कर रहा हूं, ये जीई माइनस एफ ई क्या हो गया, दिस इज डाइजेस्टेबल डाइजेस्टिबल एनर्जी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से पॉइंट से शुरू किया है। अब इस डाइजेस्टेबल एनर्जी में से अगर आपने यूरिनरी एनर्जी, क्योंकि यूरिन में भी कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर, नेक्स्ट वन इज गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कई बार इसमें आप केवल मीथेन का और सुनेंगे। तो जो दूसरे लॉस हो गए, एक लॉस तो आपने समझ लिया फीकल एनर्जी लॉस, यूरिनरी एनर्जी। यूरिनरी एनर्जी में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो कि पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ, खास करके नाइट्रोजन प्रोडक्ट, प्राइमरली यूरिया इन मैमल्स एंड यूरिक एसिड इन बर्ड्स। जो नाइट्रोजन के मेटाबोलाइट्स होते हैं वो काउंट करते हैं, और यूरिक एसिड और यूरिया का भी कुछ ना कुछ एनर्जी वैल्यू होगा, तो ये जो यूरिनरी एनर्जी का माइनस कर लेते हैं। और उसके साथ साथ गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, इन केस ऑफ रूमिनेंट यू मस्ट बी नोइंग कि जब फर्मेंटेशन होता है, आफ्टर फर्मेंटेशन मीथेन इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, carbon dioxide, hydrogen sulfide, etc. These gases are produced and all gases has some energy value. सबके अपनी अपनी एनर्जी वैल्यू होते हैं। तो जो वो कहाँ से आया कि जो आपने फीड खिलाया था वही वेस्टेज होके उसमें फीड एनर्जी में चला गया, वेस्टेज हो गया। तो क्लियरली यही हुआ कि अगर आपने ग्रॉस एनर्जी में से फीकल माइनस किया तो वो डाइजेस्टिबल हो गया, और उसमें से दोनों चीजों को माइनस कर दिया, दैट इज यूरिनरी एनर्जी माइनस गैसियस प्रोडक्ट, then it will be as metabolizable energy, and this is the energy that can be utilized by animal being at metabolic level or at cellular level. ठीक है। एक चीज और है कि मीथेन contains high concentration of energy. 1 gram of methane 13.34 किलो कैलोरी यूज कर लेता है, यानी कल कि इसमें वेस्टेज हो जाते हैं। एंड यू नो कि मीथेन
प्रोडक्शन इज हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट इन केस ऑफ रूमिनेंट। फर्स्ट किस में होता है, पैडी स्ट्रॉ में होता है, और इसलिए कहा जाता है कि मीथेन जो है क्या आपका ग्रीन हाउस गैस है, और इंडिया को ब्लेम किया जाता है कि वी आर प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन। और मीथेन का एक सिंपल सा रिलेशन है कि अगर डाइजेस्टिबिलिटी कम हो गई तो मीथेन ज्यादा होगा, डाइजेस्टिबिलिटी हाई हो गई तो मीथेन कम होगा। दिस मीन, और इसके लिए अलग अलग से प्रोग्राम होते हैं कि हाउ टू decrease the concentration of methane, because methane is nothing but loss of feed that should be otherwise used for animal being. In case of non-ruminant, चाहे वो poultry हो, pig हो, GPD यानी कि gaseous production of digestion is very less. मीथेन तो वहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है, थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वो निग्लिजिबल होता है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि GPD इज हाईएस्ट इन केस ऑफ रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट में वो नहीं होगा। उसके बाद भी होगा तो जो आप जिसके सीकम फर्मेंटेशन होते हैं, जैसे रैबिट हुआ, या जिसके कि पोस्ट गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन होते हैं, वहाँ थोड़ा सा मिडवे होता है, बट सबसे ज्यादा रूमिनेंट में होगा और सबसे कम नॉन रूमिनेंट में होगा। इसीलिए अगर एक ही फीड को हम फीड कराते हैं, एक ही तरह के फीड कंसंट्रेट को, तो उसका इफिशिएंसी ऑफ कन्वर्सन जो है वो रूमिनेंट में कम होगा एज कंपेयर टू नॉन रूमिनेंट, क्योंकि एक मेजर पार्ट जो है वो मीथेन में चला जाता है। खड़े 10 मिनट ही बचा हुआ, गुड। ऑन एन एवरेज एक चीज और देखना कि एमई का जो कन्वर्सन होता है वो डी से 0.82 है। ये कई बार आपको याद करना है। And 18 ये इसीलिए है कि ऑन एन एवरेज 18% ऑफ द अपरेंटली डाइजेस्टिबल एनर्जी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड मीथेन। जो टोटल आप फीड करा रहे होते हैं डाइजेस्टिबल एनर्जी का, उसका 18% या तो मीथेन और यूरिन और उसके कॉम्बिनेशन में वेस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई एमई इज 82% ऑफ डी ओनली। एक सवाल जो पहले भी बताया था, इन पोल्ट्री मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इज द प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी एस्टिमेशन, बिकॉज कि वहाँ पे फिशेस और यूरिन को एक साथ हम ये अलग अलग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका दोनों का एक ही कॉमन ओपनिंग होता है, दैट इज क्लो का। इसीलिए हम इन केस ऑफ पोल्ट्री यू यूज टू हैव मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, ना कि डाइजेस्टेबल एनर्जी। हीट इंक्रीमेंट, हीट इंक्रीमेंट, अब जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से नेट एनर्जी तक आएंगे, उसमें एक और फैक्टर है, दैट इज हीट इंक्रीमेंट। हीट इंक्रीमेंट क्या है, इसका दूसरा नाम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग भी कहते हैं, कि जब फीड कराते हैं आप किसी भी चीज को या फीड खाते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट होता है, या उसके यूटिलाइजेशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में। तो हीट इंक्रीमेंट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज हीट ऑफ फर्मेंटेशन एंड अनदर वन इज हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। तो कई बार पूछा जाता है HI इज इक्वल टू HF प्लस डॉट। अभी मैंने कहीं क्वेश्चन भेजा था किसी यूनिवर्सिटी, वहां पे ये सवाल पूछा है, हीट ऑफ हीट HI इज इक्वल टू HF प्लस HNM, या वाइस वर्सा पूछा जाता है। तो ये हीट ऑफ फर्मेंटेशन है, क्या है, ये रूमिनेंट में ज्यादा होता है। फर्मेंटेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो हीट रिलीज होती है, उसी को कहते हैं हीट ऑफ फर्मेंटेशन। बट इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे लिखा हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो ये जो हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म होगा वो हर एक एनिमल में होगा, लेकिन अब हीट ऑफ फर्मेंटेशन जो होगा वो मेजरली किस में होगा, रूमिनेंट में होगा। यानी कि हीट ऑफ फर्मेंटेशन विल बी हायर इन केस ऑफ रूमिनेंट एज कंपेयर टू एनी अदर एनिमल। और ये जो हीट इंक्रीमेंट होता है ये एनिमल के लिए यूजफुल नहीं होता है, दैट्स व्हाई हीट लॉस्ट बाय द एनिमल इज ए डायरेक्ट टैक्स ऑन द फीड एनर्जी। जो आप फीड करा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर एनर्जी लॉस हुआ तो उसकी यूटिलाइजेशन कम होगी। और इसी से मिलता जुलता, इस पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज करोगे आप, इसको बोलते हैं SDA, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। कभी क्लास में भी बताया होगा कि SDA इज लोएस्ट इन केस ऑफ फैट एंड हाईएस्ट इन केस ऑफ प्रोटीन। अगर मोनोगैस्ट्रिक की बात करें तो जहां पे जिस फीड को खाने से कम एनर्जी वेस्ट हो उसकी SDA कम होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में फैट खाना चाहिए। प्रोटीन जब आप खाते हैं या एनिमल को देते हैं तो उसकी डाइजेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, हीट इंक्रीमेंट आप समझ गए। नेट एनर्जी इज नथिंग बट दिस इज मेटाबोलाइजेबल एनर्जी माइनस हीट इंक्रीमेंट। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी माइनस हीट इंक्रीमेंट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो नेट एनर्जी होता है। और ये नेट एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है कि एनिमल किस चीज के लिए यूज कर रहा है। एक तो फीड के हिसाब से चेंज करेगा ही, और अगर चेंज करने की बात हो तो अगर इसके अलग अलग नाम होते हैं, नेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस दैट विल बी कॉल्ड एज NEM, नेट एनर्जी फॉर गेन दैट इज NEG, नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन दैट इज NEL। तो दिस वाज ऑल अबाउट
partitioning of energy starting from, if you can remember, gross energy, digestible energy, metabolizable energy and net energy. और इस साइड से आप याद करना शुरू कर जाओगे, fecal energy, urinary energy, gaseous products of digestion and heat increment. ये चार इधर याद रखिए और चार इधर रखिए, आपके सारे के सारे सवाल जो है इससे पूरे हो जाएंगे। कुछ डाटा है, D is equal to D multiplied by 0.82, इतना ही सवाल इससे आता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये दैट वाज ऑल अबाउट फीड एनर्जी। हाँ बोलिए, एनी कंफ्यूजन? नो सर एसटीए एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा? एचएनएफ सर फिर से बता दीजिए। एचएनएफ। अच्छा, अभी डिस्कनेक्ट होगा तो फिर कल बताया था ना कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेंगे ना। बता दो मुझे अभी, फिर डिस्कनेक्ट होगा ना। सर सेम लिंक पे ही क्लिक कीजिएगा सर, आप वापस ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा ठीक जो है, ग्रुप में है। डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से ज्वाइन करना, मुश्किल से 15 मिनट का काम है। एचएनएम फिर से बता दीजिए ना आपको। ओके, यस सर। फील फ्री टू आस्क, मैं अब धीरे से बात कर रहा हूँ। हीट इंक्रीमेंट, जब कभी भी फीड इनटेक होता है तो फीड के यूटिलाइजेशन में एनर्जी वेस्ट होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम मस्टिकेशन, मस्टिकेशन भी, उसमें भी एनर्जी हो रहा है, गर्जिटेशन हो रहा है, उसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वहां भी एनर्जी लॉस होगा। फर्मेंटेशन होगा यानी कि वोलेटाइल फैटी एसिड बनेगा तो वहां भी आपका एनर्जी लॉस होगा। तो ये पूरे के पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ इंक्रीमेंट या हीट इंक्रीमेंट। क्लियर है? ये हीट इंक्रीमेंट किसके कारण आया? जो फीड आपने खिलाया, फीड खिलाने के बाद उसके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के कारण एनर्जी एक्सक्रीट हुआ, एनर्जी बाहर निकला, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हीट इंक्रीमेंट ऑफ फीड या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन सा चीज कंट्रीब्यूट करता है? हीट ऑफ फर्मेंटेशन। हीट ऑफ फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन किसको कहेंगे बताइए मुझे। सीधी सी बात है कि फर्मेंटेशन रुमिनेंट में होता है। अगर फीड के बारे में कि एनारोबिक डाइजेशन हुआ तो फर्मेंटेशन हो गया। जो कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं दैट इज फर्मेंटेड टू वोलेटाइल फैटी एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, प्रोपानिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड। तो ये जो फर्मेंटेशन में भी हीट कहीं ना कहीं डिसिपिएट होता है, कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होता है, इसी को कहते हैं हीट ऑफ फर्मेंटेशन। क्लियर हो गया? ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब उसी रुमिनेंट के बारे में ही बात करिए कि once volatile fatty is produced, again volatile fatty acid has to go to lower intestine to produce ATP. If you remember, acetic acid produces 10 ATP per mole, whereas propionic acid produces 17 ATP and butyric acid. तो फर्मेंटेशन कहाँ तक खत्म हुआ? जो वोलाटाइल फैटी एसिड तक हुआ वही तक फर्मेंटेशन था, उसके बाद भी तो उसका मेटाबॉलिज्म होना है, तो वहां भी न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म में एनर्जी खर्च होती है। या ऐसे ही समझ लो कि अमीनो एसिड तो टूट के बन गया, प्रोटीन के बारे में बात करें, फर्मेंटेशन हो गया, अमीनो एसिड टूट, अमीनो माइक्रोबियल प्रोटीन हो गया, लेकिन माइक्रोबियल प्रोटीन से एनिमल बॉडी का जो प्रोटीन बनेगा वहां भी कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तभी तो कुछ एसिमिलेशन होगा। तो फर्मेंटेशन में क्या हुआ, केवल फर्मेंटेशन होगा यानी कि डाइजेस्टिव खास करके माइक्रोबियल एक्शन से, और किसमें होगा? रूमिनेंट में होता है। लेकिन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म जो है उसके बाद जो शुरू होता है रूमिनेंट में, और मोनोगैस्ट्रिक एनिमल में पूरा का पूरा जो एक फीड पार्टिकल को या फीड को कंप्लीट डाइजेशन या कंप्लीट मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को कहते हैं हम हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। एम आई क्लियर? फर्मेंटेशन इज माइक्रोबियल एक्शन, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म कि एक न्यूट्रिएंट को कंप्लीट मेटाबॉलिज्म में आप प्रोटीन डाइट दे रहे हैं तो उसका मकसद यही है ना कि फिर बॉडी में जाके प्रोटीन बने। तो एक बार जो प्रोटीन दिया वो टूटा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से एसिमिलेशन हुआ, तो उसमें जो एनर्जी खर्च हुआ उसी को कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? और कोई सवाल? नो? जी मैं एक बार बताए थे सर कुछ जो फैट का सबसे कम फैट का हीट इंक्रीमेंट, एसडीए बता दीजिए। गुड। हीट इंक्रीमेंट का ही सिनोनिम है, उसको कहते हैं एसडीए, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। अभी तो हम लोग
किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट के बारे में बात नहीं करते हैं. सपोज वी टॉक अबाउट 3 फीड पार्टिकल या 3 न्यूट्रिएंट. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज फैट एंड थर्ड वन इज प्रोटीन. तो अभी हमने बात किया ना हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म. तो न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होगी ना. तो हीट ऑफ इंक्रीमेंट या हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म जो रिलीज होता है वो तीनों का अलग अलग होता है. कार्बोहाइड्रेट का अलग है, प्रोटीन का अलग है और फैट का अलग है. तो जो हीट इंक्रीमेंट या स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन हुआ कि उस तीनों के मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अलग अलग वैल्यू है. और वही मैं बात कर रहा था कि सबसे कम जो स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन होता है, सबसे कम जो एनर्जी वेस्ट होती है वो किसमें होती है? फैट के डाइजेशन में. और सबसे ज्यादा जो एनर्जी वेस्ट होती है वो प्रोटीन में होती है. क्लियर है? तो एसटीए इज लोएस्ट इन केस ऑफ फैट whereas it is highest in case of protein among 3. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में बात करेंगे. तो फैट, एंड दिस इज द रीजन कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे और कि पूछा जाता है इन केस ऑफ समर स्ट्रेस में फैट शुड बी एडेड इन पोल्ट्री डाइट, yes or no? Yes, we should add fat